تو تحریک انصاف سے تھے، ہے اور رہے گا۔ تحریک انصاف پر مشکل حالات میں جن حالات کا سامنا ہے ان کو، ہم ان کی اتحادی جماعت ہے، اتحاد تا رہیں گے اور ہم اس میں مضبوط اس کے ساتھ رابطے میں ہیں، چونکہ انتخابی سلسلے میں ہم اپنی نشان پر الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، جو انگوٹھا کی نشان ہے، ٹکٹیں جاری ہوئی ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ ہم مرکزی قومی الیکشن میں بھی بھرپور حصہ لیں اور صوبائی الیکشنوں میں بھی بھرپور حصہ لیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ملک میں سیاسی فضا کو قائم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں۔ جو بھی مختلف قسم کے حالات ہیں جو الیکشن کے راستے میں رکاوٹ بن رہے ہیں یا الیکشن کے لیے مشکلات پیدا ہو رہے ہیں، ہماری جدوجہد ہوگی، کوشش ہوگی کہ ریاستی اداروں سے بھی ہمارے رابطے قائم رہے اور سیاسی جماعتوں سے بھی ہمارے رابطے قائم رہے، اور ہم ایک بھرپور سیاسی فضا تشکیل دینے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس وقت الیکشن میں جانا، کمپین کرنا اور لوگوں کے ساتھ ملنا اور لوگوں تک اپنا منشور اور ضابطے پہنچانا، یہ ہم پریس ہی کے ذریعے سے زیادہ مناسب سمجھتے ہیں۔ اس وقت ملک میں عدمی معاشی استحکام ہے، اقتصادی طور پر بھی ہم خطے میں ایک کمزور ملک کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، اور امن و امان کی صورتحال بھی تسلی بخش نہیں ہے، لہذا ہمارے ریاستی اداروں سے یہی گزارش ہے کہ وہ الیکشن کو صاف اور شفاف اور انصاف پر مبنی اور پرامن ماحول بنانے میں ریاستی ادارے اپنی کردار ادا کریں، اور ایسی ہی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ سیاسی رویہ اپنائیں، سیاسی روش اپنائیں اور سیاسی روش کے ذریعے سے پرامن انتخابات کے انعقاد میں اپنا کردار ادا کریں، جس کی وجہ سے ہم ایک نئی قیادت منتخب کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے آسانی سے۔ لہذا میں اسلام آباد نیشنل پریس کلب کے تمام کارکنوں کا اور تمام ذمہ داران کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور وہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ وہ بھی ماحول کو سیاسی بنانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اسی وجہ سے کہ پریس جیسے اہم شعبے اگر وہ ماحول بنانے میں اپنا کردار ادا کرے اور وہ کسی نامناسب رویے کو، اگر وہ ریاستی اداروں کی طرف سے ہو یا سیاسی جماعتوں کی طرف سے ہو، وہ اس حوالے سے اپنا کردار ادا کرے اور مناسب مشاورت سے لوگوں کو نوازے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی 8 فروری کو ہم ایک پرامن ماحول کے اندر نئی قیادت کے انتخاب میں کامیاب ہو جائیں گے۔ شکریہ، مہربانی۔ مولانا صاحب یہ بتائیں کہ میں نے متحدہ مجلس عمل کے انتخابات کی براہ راست کوریج کی تھی، اور یقیناً یہ بلا شبہ تھا کہ ایک آپ تھے اور ایک اور شخص تھے، آپ نے خیبر پختونخوا میں نمایاں کامیابی حاصل، آپ کی قیادت حاصل کی تھی۔ اب رابطہ جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا میں آپ کس مقام پر اور کس پوزیشن پر اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں؟ صوبائی اسمبلی کے حوالے سے بھی اور قومی اسمبلی کے آپ کے کتنے امیدوار ہیں خیبر پختونخوا میں؟ مولانا شجاع الملک صاحب جواب دیں گے، میں مدد کروں گا۔ شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو میں پریس کلب کے تمام معززین ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جس طرح ہمارے بھائی نے جو کہ ہمارا پرانا انتہائی دوست اور کافی پریس کے حوالے سے
माशाअल्लाह शोहरत शोहरत रखते हैं। तो इन्होंने कहा कि पहले तो आपने हुकूमतें तश्कील दी हैं और MMA की इसके बाद हिस्सा रहे हैं और हमारी क़ियादत में 3 दफ़ा मौलाना गुल नसीब ख़ान साहब हमारे सूबाई जमीयत उलमा इस्लाम फ़ा के अमीर रहे और मैं जनरल सेक्रेटरी। इसी तरह ज़िलों में भी काफ़ी लंबा सफ़र इंशाअल्लाह। इस मरतबा जिस तरह के आपके इल्म में है कि मैंने और मौलाना गुल नसीब ख़ान साहब ने KP में खुसूसन और शेरानी साहब जो है हमारे जो रहबर है इमाम हैं वो उन्होंने तो मेरे ख़्याल में हमसे ज़्यादा हुकूमतें बलूचिस्तान में तश्कील दी हैं और उसका तजुर्बा रखते हैं। और सियासी लिहाज से हम जमीयत उलमा इस्लाम फ़ा में जब थे तो तब भी तमाम जमात उसको इमामी सियासत का लक़ब जो है उसको दिया है। तो इस वक्त जो हालात हैं यानी 2 सफ़े, एक PDM का और दूसरे हमारे इत्तेहाद का था और है जो कि PTI और राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम। दूसरी तरफ जो है वो PDM की तमाम जमात हैं। और जिस तरह ये 16 महीने में जो हालात आपके सामने गुज़रे तो इन हालात में हमने जमीयत उलमा इस्लाम से पूरे मुल्क में जो हमारे MNAs हैं वो इस वक्त जो जिनके फार्म 33 जो हमें पहुंच चुका है और हमारे साथ हैं और फ़ाइल हैं और जिसके आदाद शुमार और नाम हमने जमा भी किए हैं, तो इंशाअल्लाह 35 से ज़्यादा जो है इस वक्त हमारे पास जो है 30 से ऊपर है और इंशाअल्लाह 40 से ऊपर कौमी सीटों पे जमीयत उलमा इस्लाम यानी राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम RJY जो है वो इंतखाबात लड़ेगी। इसी तरह सूबा खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन जो है इस वक्त जो हमारे पास 33 फार्म के हवाले से जिनको अंगूठी का निशान जो है वो अलाट किया गया है उसका तादाद जो है वो 25 से ज़्यादा है। और इसी तरह सूबा बलूचिस्तान में 27 से ज़्यादा है। तो इसी तरह सिंध में हमारे 6 जो है वो MPAs जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं यानी हमारे निशान पे। और इसी तरह जो है 3 MNA जो है वो सिंध में और पंजाब में जो है 4 MNAs और 5 जो है MPAs के मेंबरान जिसको तकरीबन अलाट किया गया है। लेकिन जिस तरह के आपके इल्म में था कि हमारा PTI के साथ अलायंस था और हमने इस हवाले से जो इनको टिकट जारी करना था जिसमें हमारा पार्टीशन हो जाए जो फैसला हो, लेकिन इसी वजह से उसमें ज़्यादा हमने कसीर तादाद की कोशिश नहीं की थी, वरना अब जो है इससे ज़्यादा होगा। और इंशाअल्लाह ये इलेक्शन जो है इसका सूरत हाल इंशाअल्लाह इस तरह बनेगा कि राब्ता PTI राब्ता जमीयत उलमा इस्लाम का इंशाअल्लाह काफ़ी तादाद जो है वो असम्बलियों में होगा। आपने जिक्र किया कि मुल्क में अमन और अमान का मामला जो है वो भी मसाइल हैं और इकोनॉमी के हवाले से आपने बात की, वो भी मसाइल हैं। माहौल पर भी आपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और फिर आपने कहा कि इदारों को किरदार अदा करना चाहिए। आम इंतखाबात के हवाले से ये तमाम चीज़ें जो हैं ये शकुक व शुबहात पैदा करती हैं। तो क्या आप समझते हैं कि जिस तरह एक माहौल बन रहा है कि इंतखाबात मुलतवी हो जाने चाहिए आर्जी तौर पर, आप इस बात के हक में हैं? नंबर 2 कि क्या राब्ता JUIFA के साथ दोबारा मर्ज हो सकती है? क्या इस तरह को राब्ते हुए? असल में जो कि आपने जिस तरह फरमाया कि इंतखाबात तो बहर सूरत होने चाहिए, ये अलग बात है कि तमाम सियासी जमातों का तहफ़्फ़ुज़ात का जो है वो इम्कान भी है और यकीनी भी है और ठीक भी है। और अगर सही तहफ़्फ़ुज़ात भी है और तहकीकी तहफ़्फ़ुज़ात भी है तब भी हम चाहते हैं कि किसी तरीके से मुल्क में इस्तेहकाम सियासी पैदा होगा तो माशी भी पैदा हो जाएगा। और दूसरी बात यह है कि फ़ा के साथ न हमें किसी ने रब्ता किया है और न मेरे ख्याल में हम इसकी ज़रूरत महसूस करते हैं।
इंतखाबी इत्तेहाद है, आपने बहुत सारे हलकों पे अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि पीटीआई की तरफ से भी इन तमाम हलकों पे उम्मीदवार खड़े कर दिए, तो ये आपकी तरफ से इत्तेहाद है लेकिन पीटीआई की तरफ से नहीं है, राष्ट्रवादी कीजिए। जी, असल में जिस तरह मौलाना गुल नसीब खान साहब ने फरमाया, मैं मुख्तसर, हमारा सियासी इत्तेहाद हुआ था फ्रंटियर हाउस में और शायद इस्लामाबाद में था, तो अक्सर सहाफ़ी दोस्त जो है उनको पता है और चैनलों पे चला था कि हमारा जो MOU साइन हुआ था उसमें यानी हमारा सियासी इत्तेहाद जो है वो बन चुका है और इंशाअल्लाह रहेगा, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। अलबत्ता सीट एडजस्टमेंट हमारी फाइनल नहीं हुई, बस इतनी बात है। मौलाना साहब फरमाएं कि इलेक्शन के बाद जो एक तवक्को की जा रही है कि जो आमतौर पर पीटीआई के इत्तेहादी, जैसे आप मोदी अनाउंस भी कर रहे हैं अभी भी, या इसी तरह मजलिस वादतुल मुस्लिमीन वाले हैं, तो ये कहा जा रहा है कि शायद इलेक्शन के बाद वो अपनी किसी इत्तेहादी जमात को साथ में ला के अपनी सीटों का जो मखसूस सीटें हैं उनका दफा करें या पार्लिमान ऐवानों में उनके जरिए जाए, तो क्या राब्ता JUI जो है वो पीटीआई को अपने किस तरह के साथ, किस तरह उनके आजाद लोग को लेने को तैयार होगी? और हम ताबेदार हैं, इस तरह की कोई मुश्किल नहीं है। वो अगर कहें कि हमारी और आपकी इत्तेहाद सियासी तो है, अब अगर सीटों के हवाले से वो कहें कि हमारे दोस्त जो है वो कामयाब होंगे या इससे पहले जो है हम आपसे बात करना चाहते हैं, हमने पहले उसको ऑफर भी की थी कि हम आपको अंगूठी का निशान देने के लिए तैयार हैं। मौलाना साहब ये बता दें कि बहुत सारे सेनेटर्स को अप्रोच किया जा रहा है और करारदादे भी जा रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो जाए, आपसे किसने रब्ता किया? एक दूसरे कि मौलाना अब्दुर्रहमान की जमात पर हमले जारी है और वो अफगानिस्तान, दौरे अफगानिस्तान में भी थे, मैं चाहता हूँ गुलनसीब साहब, मौलाना गुलनसीब साहब जवाब दें। तो वो अफगानिस्तान गए थे और तासुर ये कि वो मुल्क की बका से ज़्यादा अपने बका की जंग लड़ने गए थे कि वो हमें हमारी जमात के ऊपर हमले ना हो। गुलनसीब खान साहब आप क्या कहते हैं इस पर? अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, शुक्रिया। मसला ये है कि जहाँ तक अफ़गानिस्तान जाने का उनका ताल्लुक़ है या अपनी हिफाजत के जंग लड़ने का उसका ताल्लुक़ है, तो आप मुनासिब आदमी है, ये आप उनसे सवाल करें कि वो कैसे किसकी तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ रहे हैं। इसमें मौलाना ये सवाल पूछना आया भी इधर से सवाल है, उसका जवाब चाहेंगे। एक तरफ आप करेंगे सियासी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ आपका इत्तेहाद है और इस बात का भी इतराफ़ आप करें कि PTI या तहरीक इंसाफ इस वक्त मुश्किल में है, तो क्या आप उनकी मुश्किल को उस मुश्किल में उनका साथ देने के लिए कोई हुकूमत पे प्रेशर डालेंगे, इलेक्शन कमीशन पे कोई बाइकाट की तरफ आप आएंगे, जबकि आप खुद इतराफ़ कर रहे हैं कि आपकी एक इत्तेहादी सियासी इत्तेहादी मुश्किल में है? मेरे ख्याल में बाइकाट जो है वो प्रेशर नहीं है, बाकी तमाम जितने भी वो अगर तहरीक चलाएं, जो भी करे, हम जेल में चले जाएं, बस एक दफ़ा हमने उसके साथ साइन किया हुआ है तो हम इत्तेहादी। सर आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनकी जानिब से इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा जो इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में लोग हैं वो उनको पीछे धकेल रहे हैं, आप भी उनके बयानिए को तस्लीम करते हैं क्या कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट PTI के खिलाफ क्रैक डाउन कर रही है, उनको साइड लाइन लगा रही है या फिर पार्लियामान से आउट कर रही है? ज़ाहिर है आप हमसे ज़्यादा वाकिफ़ है और इसी तरह नज़र आ रहा है। नहीं, आपकी पार्टी का इस बारे में क्या मौक़िफ़ है? नहीं, वो जिस तरह आपने कहा मैंने कहा ये ठीक है और इसी तरह सबको नजर आ रहा है। ऐसा तो नहीं होगा कि वो जिस तरह अख्तर ने उनके साथ हाथ किया है आप भी इस तरह के एग्रीमेंट कर रहे हो, बाद में इसी तरह एक वापस कर रहे हो? यार ये जो है ये वक्त साबित करेगा, हमारी तारीख भी है, आप हमें जानते हैं, पूरी तारीख आप देखें, हमने बड़ी सग़ीर में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जो लड़े हैं और जो फांसियाँ काटी है और जो जेलें काटी है वो आपको मालूम है, लिहाजा हम भागने वाली नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखेंगे कि हम कैसे करें। सवाल का जवाब नहीं आया, वो ये था कि इस वक्त मखसूस नशिस्तें अलाट की जाती हैं पार्लिमानी जमातों को, जब एक पार्लिमानी ग्रुप बन जाता है तो उससे मखसूस नशिस्तें अलाट की जाती हैं। अब उनके पास पार्लिमानी जमात की पोजीशन नहीं है, आज़ाद उनके अरकान आएंगे लेकिन आपके पास पार्लिमानी पार्टी की पोजीशन है। सवाल ये था कि क्या आप पार्लिमानी पार्टी फराहम करेंगे अगर जरूरत पड़ी PTI को, ताकि मखसूस नशिस्तें उन्हें मिल सकें? असल बात जो है वो मखसूस नशिस्तों की भी हैं कि वो 227 नशिस्तें हैं, लेकिन उससे असल बात जो है
کہ PTI جو ہے اس کو یعنی میرے خیال میں تتر بتر جس کو ہم کہتے ہیں پشتوں میں پتہ نہیں آپ کہتے ہیں کہ وہ یعنی بغیر یعنی نشان کے بغیر پلاننگ کے تو وہ رہ گئی ہے، تو اس میں اس کا بھی زیادہ نقصان ہوگا۔ اگر وہ یعنی اس پہ مناسب سمجھے تو یہ بھی اس کا بچ سکتا ہے، اور آئندہ کے لیے ایک مضبوط سیاسی جماعت اگرچہ اس وقت نوزائیدہ ہے لیکن نوزائیدہ نہیں ہے، مطلب شیرانی صاحب یا مولانا گل نصیب خان صاحب ہمارے بڑے ہیں اور انشاءاللہ مضبوط لوگ ہیں، تو میرے خیال میں کہ اس کی جو قوت بنی ہے اس کو یکجا کرنے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے اس سے اچھا آپشن جو ہے وہ نہیں ممکن ہے۔ مولانا گل نصیب صاحب، آپ نے یہ بات کی کہ عام انتخابات کے انعقاد کے لیے اداروں سے ہم رابطے میں رہیں گے، تو آپ کے اتحادی عمران خان ہیں اور وہ اس وقت مشکل صورتحال میں ہیں، تو ان کے لیے بھی آپ اداروں سے بات کریں گے؟ بالکل کریں گے، 110% کریں گے۔ کیا رابطہ کیجیے تو علماء اسلام پر امید ہے کہ عام انتخابات صاف و شفاف ہوں گے؟ کچھ لوگ مطلب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے، اس پر آپ لوگ تو پہلے کبھی شفاف ہوئے بھی نہیں ہیں، اور اس دفعہ ہم مولانا گل نصیب خان صاحب نے کہا کہ پرزور وہ کیا ہے کہ سیاسی ماحول بنایا جائے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، آپ سب حضرات سمجھتے ہیں کہ اگر شفاف انتخابات نہیں ہوگا تو وہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ پھر ظاہر ہے ہم بھی جانتے ہیں، تمام لوگ جانتے ہیں، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات ہو، صاف اور شفاف انتخابات سے استحکام آئے گا، اور باقی جو انتشار کے ہیں، اب سوشل میڈیا کا دور ہے تو میرے خیال میں انتشار ختم نہیں۔ اگر نہیں ہوتے تو پھر عمل کیا ہوگا؟ ہاں تو وہ تو بعد میں مشورہ کر کے بتائیں گے نا۔ میں فیصلے میں کیا کہتے ہیں جو بلّہ ان سے واپس لیا گیا؟ یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ ایک ایسے بچوں کے ادارہ نہیں ہے، انہوں نے قانون اور آئین کو دیکھ کر یہ کیا ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے آئینی دلائل سے یہ کیا ہے۔ تھینک یو۔